कभी कभी अमृत और पुनीत मुझसे बोलते थे तो इसमें क्या करोगे, मैंने कहा भाई एक्शन के बाद ही पता लगेगा। तो जब वो पर्टिकुलर सीन आया था उसकी रीडिंग मैंने करने से मना कर। मैंने गुल्लक किया था, उसके बाद मैंने ऑपरेशन MBBS के 2 सीजन्स करे थे और तो उन्होंने मुझे बस एक दिन बुला के बोला कि आई थिंक नाउ यू नीड टू डू अ बिगर शो। मतलब ये मैंने कभी किसी को बताया नहीं। आई टुक वर्कशॉप टू डायरेक्ट एक्टर्स। आपको क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, व्हाट्स द टेम्पो, व्हाट इज वेरी वेरी टेक्निकल. So that was discussed to the point of precision. For me, I felt an intimacy coordinator would have just slowed us down. Each and every actress who shot with us, we told them beforehand, before the camera rolled, that the right to call cut is yours. If there is a desire to be satisfied, somebody is there to satisfy the desire. Gender doesn't matter. So you're playing a gigolo. What was your process like? What did you do to get into the role? Hello and welcome to Digital Commentary. I'm Ankit Shukla, and today we have a very special episode. We have the cast and the creators of this very good show on Netflix called Tribhuvan Mishra CA Topper. We have Manav, who plays Tribhuvan Mishra. We have Tilotama, who plays Bindi. We have Puneet Krishna, who's the creator of the show, and Amrit Raj Gupta, who's the director of the show. Guys, welcome to our show. Thank you so much for your time. By the way, I saw the show and it was a very interesting watch. I binged on it completely and had a great time watching it. So congratulations on that. Thank you so much. Thank you. Yeah. So I'll start with Puneet, since you're the creator of the show. Yeah. What prompted you to say the story? It's a story just came into my head. I was going through a tough time during that time and wanted to tell a story which should be sellable and enjoyable and like hugely entertaining for the viewer. That was the core idea. And then this one-liner came into my head and that's it. ऐसा नहीं कि किसी हेडलाइन से या न्यूज़पेपर हेडलाइन से ट्रिगर हुआ या कहीं मैंने कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं था. नहीं, क्योंकि yeah. the whole idea of the gigolo, to be quote unquote gigolo, yeah. is very new. Even in abroad, you won't see many of the movies. Like I think the last two I remember was Deuce Bigalow, Male Gigolo. एक मूवी आई थी. Yes, yeah, oh yes. और एक HBO की शो थी हंग करके. There's also एक शो है हॉलीवुड, if I'm not wrong. नहीं वो भी उस पे It was not primarily based on male. Hollywood is not primarily on escorts. Yeah. So that's what I wanted to know कि ये आपने कहीं देखा अपने एक तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे सारे हमने क्या किया है ह्यूमन इमोशंस में, खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ. वी हैव समहाउ डिवाइडेड देम इनटू मेल इमोशंस एंड फीमेल इमोशंस. यू नो, मेल इज अ प्रोवाइडर. वो है ना, अभी मैं तो लेखक आदमी, घर में रहता हूँ, बीवी घर चला रही, तो प्रोवाइडर तो काय के हुए. तो सेम स्टोरी हमारी भी है. हाँ, तो वेरी गो. तो आई थिंक जो तरीका है देखने का, अगर हमारा जीवन को देखने का तरीका ये है कि द इमोशंस आर जेंडर एग्नोस्टिक. So then this question becomes slightly irrelevant because female escorts तो हम नहीं ऐसे react करते. Correct. But if there is a desire to be satisfied, somebody is there to satisfy the desire. Gender doesn't matter. True that. A male can provide it, a female can provide it. It's exactly equal. The transaction is. It's gender neutral. It's gender agnostic completely. But then when you do flip it in a country which is so patriarchal, it just actually speaks volumes about the maker's mind and True. yeah. At least वो subliminal level पर आप सोच रहे हैं. So that is वो कोशिश हुई very शायद. हाँ. Amrit, you've done shows before this, right? And वो slice of life zone में रहते थे. Correct. Right? And to do this, ये proper पूरा shift है. Were you nervous at first doing this? Yeah, I mean, so first of all, I would like to thank my agent, Chaitanya, जो हमारे common तुलसी पिक्चर्स. बहुत सालों से मैं उनके साथ काम करता हूँ, मतलब मिर्जापुर से भी पहले की मैं बात कर रहा हूँ. मेरे भाई जैसे, मेंटोर जैसे, तो हम दोनों की सेम फीलिंग होगी चैतन्य के लिए. तो उनका तो मैंने गुल्लक किया था, उसके बाद मैंने ऑपरेशन MBBS के 2 सीजन्स करे थे और तो उन्होंने मुझे बस एक दिन बुला के बोला कि आई थिंक नाउ यू नीड टू डू अ बिगर शो. एंड आई थिंक इन कपल ऑफ मंथ्स ही कॉल्ड मी एंड ही जस्ट टोल्ड मी अबाउट राम सर एंड पुनीत सर दैट दे आर मेकिंग अ शो. मैं तुम्हारी कॉल फिक्स करता हूँ. मैंने कहा ठीक है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू स्पीक टू देम. और अंकित, वो क्या होता है ना, कभी कभी जब आपको पता होता है कि आपने कॉल करी है और आपको पता है कि कुछ बात ऐसी हुई है, वाइब ऐसा जमा है कि, और बहुत ही नेचुरली, मतलब अगले दिन आई थिंक, हाँ बहुत नेचुरली हुआ वो. अगले दिन ही मतलब मुझे कॉल आ गया. कोविड का टाइम था तो फिजिकली भी मिल के बातें नहीं हो रही और थी. कॉल बातें तो जूम कॉल पे चल रही थी. आप समझिए, 2 अजनबी एक दूसरे को जूम कॉल पे पहली दफा मिले. तो मतलब वो ऐसा हो गया. एंड देन तो लेकिन इन लोगों ने बहुत एक अच्छी चीज़ क्या ना बताया नहीं मुझे कि शो क्या है. तो मैं भी थोड़ा सा ऐसा था कि क्या है. फिर एपिसोड 1 की स्क्रिप्ट आई और जब मैंने पढ़ा तो मैं ऐसा हो गया कि यार ये क्या है,
ये तो कुछ अतरंगी दुनिया है. एंड आई मतलब instantly I was like I wanted to be a part of this show and that's how it started. And of course मतलब Were you a little nervous कि थोड़ा I सा was very- wobbly in your I was stomach very and all nervous that? यार honestly because I was doing shows of 14 days 15 days. बहुत छोटे सेटअप के शोज कर रहा था और वहाँ से उठा के मुझे सीधा 91 days of shoot and action and handling a lot of characters and all of that. And when I got to know that Manav sir and Tilotma ma'am are there and मतलब ये मैंने कभी किसी को बताया नहीं है बट ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ मैंने फॉर दिस शो आई टुक वर्कशॉप टू डायरेक्ट एक्टर्स. So I would like to really thank my coach दामिनी बासु because I was like ये सारे जो एक्टर्स हैं थिएटर के वेटरन हैं मैं कैसे करूँगा. मतलब मैं बहुत ही नर्वस था बट एक्चुअली क्या उन्होंने मुझे कोच किया. एक्चुअली 3 महीने मैंने कोचिंग करी है मुझे कि मन्नत कैसे वन्नत तो नहीं मांगी. सो मैं एक्चुअली मैं उस तरह की तैयारियां कर रहा था कि यार मतलब क्योंकि शो में बहुत लेयर्स थी और बहुत कुछ था. बट आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम माई प्रोड्यूसर्स एंड दे रियली बिलीव्ड इन मी एंड मुझे खेलने का मौका दिया. और आई थिंक जब आप किसी को उड़ने देते हो तो फिर वो चीज़ें भी आई थिंक सही से होती हैं. तो आई रियली वुड लाइक टू थैंक पुनीत सर, राम सर, विनीत सर. सो या Nice. इट्स ब्यूटीफुल. Tilodamma, last we saw you in Kota Factory. Engineering background. This is Chemistry. yeah, but it was about engineering preparations and everything, right? Chemistry पढ़ाती Okay, है. where this question is going. Now, CA topper is about CA, which has got nothing to do with CA. So, any other streams that you will be exploring in your next project that we'll get to see? आई थिंक मैथमेटिक्स सीखना बहुत वीक है मेरा. लाइफ में कैलकुलेट करना बहुत मेरे लिए मुश्किल है. बट आई मीन आई एम वेरी ग्लैड टू हैव प्लेड पूजा दीदी ऑल्सो बिकॉज it's really it touches an audience that is often neglected. We expect a lot from the future generation but we don't invest much in it. And I really like the people of TVF and I really like their heart for the young people. It's an audience member that I think as adults we just expect that they should just grow up into fine upstanding citizens. But in our cinema and in our popular culture we don't make space for them. Yeah, we don't own them. We don't really, so I really enjoyed playing that kind of being a part of a world that is so idealistic and that's so supportive and What about yeah. Bindi? And so then and for me Bindi's character, what was really refreshing, and not just Bindi's, and I've said it a few times but I really genuinely believe it, that the men and women that Puneet has created, in fact he's been gentle with all of them, but I think with the women he has I think taken on a collective guilt of and rightfully so I feel. I mean, if you're halfway sensitive you will not only want to correct the mistakes of your generation and generations before. I think he's so sensitive that I think he took it on. So the way he has written the women characters are almost there's a tone, the choice of words and a punctuation and a syntax to what the women say in the show that don't exist in my realm, in my experience. That's something I've watched. I've not heard a woman conjugate a sentence like that, and I really do think it is because he actually genuinely respects people. But I think he also is sensitive enough to know that we are in a very patriarchal society, and so if I am going to make a show, let me see how I can free our women a little bit, at least in the world of fiction. And these women are really like In the given. montages we saw, बहुत सारे montages में there was this cancer patient thing. Then That was so beautiful. that was very nice. I teared up There's watching woman it. without an arm. There's a woman without an arm. Then there was this one montage जिसमें the woman has a slash marks on her back. Yes. So it was and आपने montages में उसको खेल दिया.
You know, you didn't sit on it, didn't dwell on it. No. That was the best No, part. even the lines that the women say, you know, usually if you have say a line, the camera will slow down. Like, you know, कुछ एक social message दे रहे हैं और उसको बहुत explain करेंगे. Underline नहीं किया. नहीं, it's like Audience बहुत smart you know, है इनके भाई, बहुत, बहुत smart. exactly. 140 crore से by law of average they would be a huge chunk of smart people. You know, ऐसा possible ही नहीं है ना. वो समझ जाएगी, बहुत smart है. And survival of the fittest है, हम अगर इतने irrelevant होते by now, it would just be a world of men, no? We would have been evolutionarily Yeah, बहुत smart है हम यार. removed, Correct, but we are still here. Yeah. True that. So, you know, to put our desires in the forefront in such a easy, without any kind of explanation kind of way, it's True. very refreshing, yeah. It was. Manav. So कैसे अंकित कैसे मजेदार नाम आदमी लिया है आप. मानव I have a very interesting question for you. बताइए. Because क्या है कि ना acting में लोग घुसते हैं ना तो they have this thing कि you know they'll if they want to get into the space they'll lock themselves in a room, right, to get into the character. Balraj Sahni, you know, during his time वो उन्होंने हाथ रिक्शा ही pulled. So you're playing a gigolo. What was your process like? What did you do to get into the role? यार मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं इस रोल के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन दोनों की प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा थी कि मैं शायद पहली बार ऐसा हुआ कि अधिकतर में ऐसा होता है कि इसे मेरी एक जिम्मेदारी है एज एन एक्टर कि आई हैव टू इंटरप्रेट दिस रोल, आई हैव टू लिव दिस रोल. तो मैं हमेशा छीन लेता हूँ सारे अधिकार और एक स्पेस बनाता हूँ जहाँ पे मैं जी सकूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई किरदार को जी के वापस आना. नाउ बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग 9 एपिसोड्स और इतना लंबा शूट है और हम लोग मतलब शायद 9th एपिसोड का सीन पहले दिन शूट कर रहे हैं. तो ना ऑर्डर में शूट नहीं ऑर्डर में शूट करते नहीं लोकेशन वाइज हैं. तो मैं पूरी तरह सरेंडर था इन लोगों दोनों के हाथों में और ये लोग जो जैसा गाइड करते थे. और इनफैक्ट उसके पहले की जो प्रिपरेशन थी, जो हमने रीडिंग्स की मेरे घर पे, तो हमने ऑलमोस्ट हर एक्टर के साथ एक बार रीडिंग तो हमने की है नए एक्टरों के साथ. और इन्होंने जो मेरे को स्क्रिप्ट सुनाई है सारी, मतलब मैंने सारे एक सीन की नरेशन ली है पुनीत से. तो आप एवरी फ्रेम में हो ऑलमोस्ट. हाँ ऑलमोस्ट है ना. तो Yeah. और वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली बहुत डाइसी है वो वाला काम, क्योंकि आप एक वेल रिटन कुछ अच्छे सीन्स करके निकल जाओ, देन यू कैन प्ले एब्सोल्यूट ड्रामेटिक सीन्स द वे यू वांट एंड ये वो आपको पता है कि इसमें इम्पैक्ट छोड़ना है. यहाँ इम्पैक्ट नहीं छोड़ना है, यहाँ आपको रहना है. तो आपका रहना और कुछ जगह जाके घूम के आना, उसमें अंतर है बहुत. तो ये अंतर इन्होंने ही सिखाया और मैं इनके हाथों में था. तो मैंने जितनी कोशिश की इनको इन दोनों को ऑप्शंस देने की, मेरा काम वो था पूरे सेट पे कि मैं हमेशा आके ऑप्शन दे देता था कि ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ. फिर अगर ये लोग बोलते थे नहीं ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कर दो, तो मैं उनके हिसाब से मेरा कैरेक्टर एक्चुअली बना है वाइल आई वाज परफॉर्मिंग. एंड बिकॉज मेरे को ट्रस्ट बहुत था, मतलब कि मैं पहली बार ही कर रहा था कि मैंने अपने सारे घोड़े जो है इनके हाथों में दिए हुए थे. क्योंकि अधिकतर ऐसा मैं करता नहीं हूँ. मैं एक्टर हूँ कि मेरे को सब कुछ पता होना चाहिए और मैं खुद राइट करूँगा. बट बहुत ही रेयर होता है कि इतना इन डेप्थ इनको पता था. मतलब वर्ल्ड पुनीत का वर्ल्ड है. मतलब और इनवेरेबली मुझे भी पता नहीं चला कि मैंने शायद अमृत से बात शेयर की थी कि इसमें कुछ नैक है जो मैं बिल्कुल पुनीत की तरह करता हूँ. कुछ परफॉर्मेंस स्टाइल आ गई है क्योंकि मैं इतना ज्यादा पुनीत को देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि रोहन इज पुनीत इन अ वेरी वियर्ड वे. तो मैं कुछ अभी कुछ कमाई नहीं कर पा रहा मैं जो इन्होंने शो में की है वो नहीं कर पा रहा. बट कुछ मेरे मैनरिज्म जो है वो पुनीत की तरह होते गए थे. तो कैन यू बता सकते हो कौन से वाले so that we know. नहीं एक्चुअली जो पुनीत का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्साइटमेंट लेवल है. जब वो एक्साइट होते हैं वो ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक क्वालिटी है और मुझे वो क्वालिटी वैसे भी किसी एक्टर में बहुत अद्भुत लगती है. तो मेरे अंदर एक जहाँ भी मेरे अच्छा या कुछ ऐसा कुछ आता है तो मेरे के अंदर एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी आती है. वो बहुत पुनीत है, बहुत पुनीत है. कुछ हैंड जेस्चर्स हैं जो अचानक पुनीत हैं और एक चीज़ का खुश होना, कुछ एक तरीके से खुश होना, वो पुनीत है. तो और आपको पता भी नहीं लगा ये ऐसा कुछ, मैंने कोई ऐसा नहीं किया कि इनको ऑब्जर्व किया. और मैं उस तरीके का एक्टर हूँ नहीं, मैं बहुत इंस्टिंक्टिव एक्टर हूँ. अगर जब एक्शन होता है उसके बाद मैं क्या करता हूँ मुझे भी नहीं पता है. एंड आई लाइक टू आई डोंट वांट टू नो कि मैं वहाँ जाके क्या. तो इसलिए कभी कभी अमृत और पुनीत मुझसे बोलते थे तो इसमें क्या करोगे. मैंने कहा भाई
एक्शन के बाद ही पता एक्चुअली लगेगा। इनकी हाँ, तैयारी है ना, हाँ। मतलब बहुत बार ऐसा, मतलब Correct. मैं तो इसी चीज से सरप्राइज था कि इनकी तैयारी कभी दिखती नहीं थी, नहीं कभी दिखेगी, हाँ। कभी ना ये मतलब script- वो लिटरली मतलब कैमरा हाँ। ऑन होने से पहले मानव कौल है, कैमरा ऑन होने के बाद त्रिभुवन मिश्रा नहीं, लेकिन है। मैंने एक वो और चीज कर रहा था कि स्विच है, क्या होता है कि बहुत मैं ही कब- अजीब सा स्किल है वो। मैं explain कभी नहीं कर स्क्रिप्ट भी सकता याद ना करके वो। नहीं आता हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता भी नहीं था। मैं सेट पे आता या। था, मैं पूछता था कितना सीन है, 3 पेज का है। अगर 3 पेज भी मुझे बोलने हैं, मैं रट के नहीं आऊंगा। तो ब्रांडो टाइप करते थे क्या इधर उधर? वो रट के नहीं आते हैं, तो आपको नहीं, लगेगा कि मेरा- कोई नए आदमी को लगेगा कि ये लाइन याद भी है कि नहीं, एक हाँ। भी नहीं, line। मुझे याद नहीं होती, और वो मुझे पूरा कुछ 3 याद पेज नहीं। बोल देंगे जब आप कैमरा ऑन कर देंगे। आई डोंट नो हाउ दिस कितना शो ऑफ है ना ये। हाँ? नहीं शो होता जब वो करते ना, मैं बोल रहा हूँ तो फिर ट्रूथ है। क्योंकि वो क्या है, शायद मेरी मेमोरी है वैसी, लेकिन या। मैं वो अमृत वो सुनाता था मुझे पूरा ये, मेमोरी। और मैं जाके वैसा का वैसा परफॉर्म मतलब हम लोग दो बार रिहर्स करते थे, जो इनके सामने एक्टर होते थे, ये 2 बार उसको पढ़ते थे एंड देन टेक, एंड इनके मुंह से फिर जो निकल रहा है वो बहुत वो नेचुरल, त्रिभुवन ही है फिर वो So, रटा। आप वर्ड बाय वर्ड यू रिमेंबर और कि अपना उसमें आप डालते? नहीं, इनके साथ राइटिंग के साथ नहीं कर सकता। हाँ मतलब वैसे मैं कर देता हूँ क्योंकि वो स्पोकन क्वालिटी होनी चाहिए। मुझे हमेशा लगता है कि डायलॉग नहीं सुनाई देने चाहिए, और ये सारी एक्सरसाइज ही उसकी है, मुझे लगता है सिनेमा में, कि वो वहीं पे जिया हुआ लगना चाहिए। वरना सिनेमा करने का कोई मतलब नहीं। अगर आप रट के आके एक अच्छा सीन कर दो पूरा वैसा का वैसा, इट्स वेरी प्लास्टिक। तो मुझे वो वाली क्वालिटी अच्छी लगती है, तो मैं याद कुछ नहीं करता था, बट मैं वर्ड कॉमा सब वैसा का वैसा ही बोलता हूँ लगभग। वो दैट्स वो राइटर के लिए और क्या या वही है तो कि हम भाई ब्लेस्ड, हम सारे ब्लेस्ड हैं। मुझे लगता है कि हम एक कहानी का हिस्सा हैं, जो अगर देखने वालों को अच्छा लग रहा है और हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, पर हम ऐसे एक्टर नहीं है, दिग्गज एक्टर, हमें लाइन करनी पड़ती है। हाँ, ये मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं। मैं अलग-अलग स्टाइल के कि लोग ये ना लगे कि सब ऐसे हैं। अब कोई डायरेक्टर सुने कि मुझे स्क्रिप्ट सेट पे दे दिया कि मानव कौल के साथ इंटरव्यू में तो हाँ मैं हाँ मिला रही थी। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मानव के जैसे बिल्कुल नहीं है। हमारी क्या बोले, सहन शक्ति नहीं, नहीं मेमोरी क्या बोलते हैं, याददाश्त। याददाश्त हाँ। बहुत ही नहीं, लेकिन weak ऑल्सो है। उसके पहले का जो काम है ना, वो इतना ज्यादा काम होता है कि आप, मेरे को सबकॉन्शियस जो है वो बहुत अच्छा लगता है। आपको जो चीजें याद रह जाती हैं वही आपका कैरेक्टर है। आप वहाँ कैमरे ऑन होने के सामने आप कैरेक्टर नहीं बना सकते, वो कैरेक्टर बन चुका होता है। और काम होता है ऑफ कोर्स बहुत काम अरे। होता है। हम लोगों ने बहुत काम किया बहुत है, काम। तो मतलब ये नहीं है कि मैं वैसा हूँ, मतलब क्लाइंट बताओ। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ। लेकिन उसके पहले का काम अगर नहीं किया है तो मैं तो औंधे मुंह गिरूंगा। नहीं, और सीरीज में ऐसा हो नहीं, हो मतलब नहीं अगर आप सकता है, अच्छी काम- सीरीज आपको हाँ, बनानी है ना तो इतना ये लंबे नहीं समय हो तक सकता। हम- मतलब जैसे एक सीन मुझे याद है जब हम लोगों ने किया था, एक सीन जिसमें जिसमें मेरे को चुगत बोला जाता है मेरी वाइफ के द्वारा, और वो सीन हाँ, आपको पता है, वो सीन हम लोग घर पे रीड कर रहे थे, तो ईच एंड एवरी सीन आई हैव रिहर्स्ड विद हिम इन माय हाउस। रीडिंग मैंने हर सीन की हर एक्टर के साथ की है। तो जब वो सीन पर्टिकुलर सीन आया था तो उसकी रीडिंग मैंने करने से मना कर दिया था। मैंने कहा इसकी रीडिंग नहीं करेंगे, इसको सीधा टेक करेंगे, फील करेंगे इसको। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज़्यादा टेंडर है और इतना रियल होना चाहिए कि ये पहली बार होना चाहिए। तो मुझे ना पहली बार सुनाई देना चाहिए मेरी वाइफ के मुंह से, तो मैं सुनना नहीं चाहता था वो लाइन। मैंने कहा एक काम करते हैं, टेक में सुनेंगे डायरेक्ट, और वो कई महीनों बाद था वो टेक। हाँ, हाँ। बहुत- लेकिन बहुत बार। थैंक गॉड इन्होंने हाँ बोला, थैंक गॉड इन्होंने बोला कि हाँ हम वहीं करेंगे सीधा। और वो जब वो सुनाई दिया मुझे पहली बार वो शब्द, आई कांट होल्ड बैक। Yeah, इट्स वो सब थप्पड़ पड़ता है ना, और वो थप्पड़ पड़ने के बाद का जो कुछ भी होता है वो प्लान नहीं हो सकता। हाँ, वो इमोशंस, वो Impulse. टीयर्स भी रियल ही है वो जो सीन के अंदर। और मैं ग्लिसरीन यूज नहीं करता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इवन हमारे डीओपी यहाँ हैंडल्ड यहाँ पे थे, मुझे याद है। वो ये जब जो भी इनका इमोशन निकलता है वो डीओपी आल्सो गॉट अ लिटिल, हाँ, मतलब- उन्होंने मुझे ऐसे देखा, हाँ, ही गॉट या इमोशनली बार थोड़ा कैमरा सा हटा दिया। कैप्चर्ड। या and he was also crying, so मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा होता है जब आप रियल कुछ करते हो, everyone is part of it, so I'm not performing it alone. So there were a lot of explicit scenes as well. Yeah. कोई apprehension थी आप लोगों को? मेरी तो नहीं थी कोई ऐसा, क्योंकि ट्रस्ट बहुत था, और इन दोनों की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा एक भी कहा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि ये लोग इतने कॉन्शियस हैं हर चीज़ को लेके, और कैसा ये दिखना चाहिए, और एंटरटेनमेंट वर्ड जो बार बार सबसे अपफ्रंट है, क्योंकि इस तरीके की स्टोरी वीव इसलिए की गई है टू एंटरटेन एवरीवन। जितने लोग इसको देखें, बॉटम लाइन इज दे शुड गेट एंटरटेन्ड। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि
ये वाला सीन नहीं वो खुद इतने The idea was not to titillate. Not at No, all. not at all. Not at तो all. बहुत दूर की Not बात at है. all. इनफैक्ट ये भी नहीं था कि ये वाला सीन करने में इनफैक्ट मजा आपको आएगा. शो से हाँ. रिलीज से पहले भी जो हम ये बातचीत कर रहे हैं या जो हमारी चीजें बना रहे हैं इसमें कहीं भी आपको फीलिंग नहीं आएगी. इट्स अ वेरी डेलिबरेट चॉइस दैट वी द शो इज नॉट लाइक दैट. वी डोंट वांट टू सेल इट लाइक दैट. वी डोंट वांट ऑडियंस टू फील लाइक दैट बिफोर वाचिंग इट एंड व्हाइल वाचिंग इट दे विल श्योरली नॉट फील लाइक. That they can't feel it. I don't think It is not a show which is going to be titillating like at if all. it, you know what you put in is what is going to come out. True. Yeah. You know, garbage in, garbage out. Computers के basic है, go. Yeah. True. तो हमारा बहुत ज्यादा ये एज अ टीम एज अ Collective कलेक्टिव effort. टीम हमारा था कि ये स्किन शो नहीं है, इसके अंदर ये सेक्स शो नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन स्टोरी है जिसके अंदर आपको बहुत सारे अलग इमोशंस मिलेंगे. और जैसे कि माना मैंने वर्ड यूज किया कि जो आपको एंटरटेन करके आपको. Yeah. Okay. Amrit, Tarantino says that sex scenes shoot karna is very difficult for him. That's why he doesn't put it. Was it difficult for you to shoot it? Difficult. Was it challenging? Like, let me just reframe it. सी आई थिंक जैसा सर ने बोला कि बिकॉज हमारी तो हमने कैसे किया कि हमने जिन लोगों को कास्ट किया उन सीन्स के लिए उनसे हमने पहले बहुत बातचीत करी. उनको हमने दिखाया कि हम एग्जैक्टली Even the one scene actors, like one अच्छा. shot actor. हमने उनको दिखाया स्टोरी बोर्ड करके कि एग्जैक्टली हम ये करने वाले हैं. क्या आप कंफर्टेबल हैं, आप नहीं हैं. देन ऑफ कोर्स प्लानिंग इट विद द डीओपी, प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड किस तरह का म्यूजिक होगा, किस तरह इसको एडिट करेंगे. Costume. तो उस कॉस्ट्यूम उस तरह की पूरी कैमरा planning- कहाँ लिंगर करेगा, what kind of Which light, part of the everything. body? और जो हमने पहले भी बात कही कि each and every actress who shot with us, we told them beforehand, before the camera rolled, that the right to call cut is yours. Yeah, Okay. yeah. So you can call cut if you're feeling uncomfortable. You can see what we have shot. If you're not comfortable, we'll delete this footage. We'll shoot it again. So sweet. Yeah. So we went to that extent to make it comfortable because shooting का तरीका भी वही है और स्क्रीन पे जो हम कहानी सुना रहे हैं वो भी वही है. So intimacy coordinator ये सब कोई नहीं था. नहीं. ना. I think it's because It's they basically were about so- the trust factor. Yeah. They really won our trust. Otherwise, I would have demanded one. Because I don't think it is my job to be uncomfortable on set. You know, I have to be comfortable on set. Now, for that, I don't know who the directors are that well, and I don't know if they'll get my level of sensitivity or, you know, if there's a match. So then you have an intimacy coordinator who communicates on your behalf, like a mediator. You know, but when you meet people who understand that this is and who approach a scene with such you know, technical attention, because it's not a matter of कि माता चढ़ गई type of, you know, कुछ feel में आ गए, you know, it's not how this world works. It is a hall of mirrors. You know, Yeah. आपको क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, what's the tempo, what is very very technical. So that was discussed to the point of precision, and you trusted them. So in fact, for me, I felt an intimacy coordinator would have just slowed us down. So Puneet, like in your shows, we have often seen, like this is my personal thing, that women characters are badass. Be it your other show, be it in this one also. Be it Tilottama's character in the show, or be it Shweta's character in the show. So ये कहाँ से आता है? Like, is it a conscious choice that you make, or is it because of your conditioning कि you're surrounded by really strong, powerful women? तो इसमें एक तो थोड़ा सा जवाब पहले वाले सवाल में भी जो दिया था वो रिपीट करता हूँ कि जेंडर एग्नोस्टिक है. मेन भी बैड ऐसी हैं. आप नहीं कह रहे क्योंकि आपने बहुत समय से देखा है मैन को बैड नहीं, because I am also one. तो सभी बैड ऐसे. अब बैड ऐस का तो डेफिनेशन ये है कि हम सब के अंदर डार्कनेस है ना, ये यांग है. अगर सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं होता तो मैं भी कहीं गन निकाल के घूम लेता. कौन जाने, ऐसे लोग घूमते भी हैं. यहाँ पर सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं होता या उन्हें डर नहीं होता. तो हम सब के अंदर है वो डार्कनेस है कि ये यांग, ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्ट्रक्चर हम सब के अंदर होगा ना, आपके अंदर भी होगा, हम सब के अंदर है. तो जेंडर एग्नोस्टिक अगर इसको मान के चले तो फिर जैसे सिचुएशन आई, मेरे जो ये और यांग में से जिसने ओवर पावर कर लिया वो वाला पार्ट मेरा बाहर आ गया. तो बैडएस हो सकता था, टिमिड भी हो सकता था. उस लिहाज से इस तरीके से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत कॉन्शियसली डिजाइन चॉइस नहीं है. इट इज नॉट अ कॉन्शियस. ये बहुत ऑर्गेनिक है. ये बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत ऑर्गेनिक है. मेरी मदर बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की मालकिन है, बहुत छोटी सी हाइट में, शायद उसी लिए मैं भी छोटा हूँ. तो 5 फुट की होंगी. और जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आता हूँ अंकित भाई, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंडिया में मिडिल क्लास के लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है. अब कमाओगे कैसे, यू नो. अमृत तो बहुत यंग है, बहुत यंग इन्होंने शुरू किया. मैं 30s में शुरू किया, 29 ईयर्स का था जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के इधर आया. तो सबने ये बोला कि यार ये कैसे करोगे, रॉन्ग डिसीजन है, नौकरी पा रहे हो. कुछ लोगों ने ये भी बोला कि निकाल दिए गए होंगे, नौकरी छोड़ता कौन है. मेरी मदर ने ये बोला कि यार कर लो ट्राई एक बार, कुछ नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में हमारे घर के ऊपर ना ग्रोसरी की दुकान खोलेंगे, दाल चावल तो लोग खाते ही हैं.
अब उनका ये कहना ना ये इतना स्ट्रांग है, नाउ इट्स अ वेरी मिडिल क्लास वुमेन, माय मदर, जिनका ये कहना मुझे लगता है इट्स अ वेरी बैड मूव। हाँ हाँ 100%। क्योंकि मुझे फिर मैं पलट के देखता हूँ तो सितार बजाती थी, वो आर्टिस्ट थी, ड्राइंग करती थी, कभी किया नहीं ना लाइफ में, वो घर संभाल रही हैं, बच्चे पाल रही थी। तो आई थिंक दैट्स अ बैड मूव इन माय ओपिनियन, राइट। तो वो हम सब तरफ से घूमे, मैं बहुत सालों से घर पे ही बैठ के काम करता रहा हूँ, और मेरी वाइफ घर चलाती रही, अब मेरी बेटी बड़ी मजबूत सी है मुझे लगता है। तो या विमेन आर, मतलब मेरे आसपास नहीं, सोसाइटी में मजबूत हैं औरतें। मतलब आई थिंक बहुत सारी, जैसे आई थिंक हम लोग जो अपने घरों में बुआ, मम्मी, मौसियाँ, मतलब लगता है कि यार बहुत टैलेंट है, था, जो कहीं खो गया। तो शायद वो कहानियों के जरिए शायद वो भाई इनके फादर मदर आए थे हमारे सेट पे, तो आप अगर ऐसे, मैं अभी इनके सामने बोल रहा हूँ पहले थर्ड पार्टी की तरह से, तो आप इनके फादर को देखेंगे तो वो एक्साइटमेंट फिर भी शो कर देंगे, जबकि मैन जनरली एक्साइटमेंट शो कम करते हैं। लेकिन वो बेटा भाई सेट पे है, कुछ काम हो रहा है, लेकिन मदर एक साइड से ऑब्जर्व करेंगे कि दिस इज माय सन डूइंग थिंग्स। तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेंथ का फैक्टर आता है। या माना भाई कि से बात कर लेंगे, मुझे लगता है ऐसे कोई जवाब देने वाले होंगे वो। तो ये है, ये फैक्चुअल बात है, ये जो मुझे लगता है। या तो मैम से आप पूछेंगे क्या उनके आसपास की, आई मीन दिस क्वेश्चन इज रेलेवेंट फॉर अ वुमेन आल्सो, कि आसपास स्ट्रॉन्ग वुमेन तो उनके भी है ना। तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग तो है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने परिवार में खोज ली थी। हाँ, एक वन लास्ट वन फॉर एवरीवन कि ये दिस डिफाइंस द शो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा। प्रेशर। सलमान या शाहरुख? चूज करिए, आप लोग को बताना है। उसमें एक तीसरे वाले भी है ना जो बाद में बोले। I don't want to spoil that. That's how I'm asking the first. तो मैं KRK बोल सकता हूँ। what about शाहरुख। शाहरुख? शाहरुक। सब शाहरुख ही है ब्रो। शाहरुख। सलमान को कोई नहीं पसंद करता। नहीं वैसा नहीं, बट इन दोनों के बीच में आप चूज करने को कह रहे हैं तो बात है ना कि अदरवाइज सलमान खान भी बहुत ही बड़े सुपरस्टार, एंड टू स्टे सुपरस्टार फॉर दिस लॉन्ग इट्स नॉट अ इजी जॉब। 100%। एंड आई थिंक आपके शो में आपने बोल भी दिया है, यूसुफ खान। यूसुफ खान। Right? सबसे बड़े। OG. Thank you so much. Thank you. For your time. It was lovely Thank you chatting so with you. I hope you guys had fun. Yes, Thank you so yes. much. Thank you, bye. Thank you so much, Chalero.